Hello friends, my name is Lavi Chauhan and I'm going to put some interesting videos and some intellectual videos and some practical videos so that you can easily work on the Delta controlling gadgets. As you all know that Delta electronics uh, in the today's market is growing very fastly because of its cheap products uh, and they provide exactly the same products which also work the same as the other companies gives like Mitsubishi, Allen Bradley and many more. And here I'm going to put some practical videos so that the people like me who face some problems while doing projects of PLC HMI, they can do it more better after going through my video. So I would like to start from the very beginning of PLC and HMI. Actually, I want to tell you one more thing here that I'm going to put my videos by the name of my company. It is SDM Auto Solutions Private Limited. We also take projects of industrial basis, industry basis project where we also make the panels, control panels, basically which work on the special purpose machine. So yeah, well I'm going to start from the basics of PLC and HMI. From the very first, I would like to tell you that Delta products are very easy to work on. So firstly, if you want to work on PLC, then everyone have to know that what kind of software it needs. Like I'm going to tell you, for PLC we need WPL soft. PLC डेल्टा की PLC, हर एक PLC के लिए हमें WPL सॉफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ करके आप अपना प्रोग्राम बना सकते हैं रिलेटेड टू एनी एप्लीकेशन. किसी भी तरीके की एप्लीकेशन हो, आप जस्ट लैडर लॉजिक बनाएंगे WPL सॉफ्ट में एंड देन ईजिली डाउनलोड करेंगे PLC से. तो सिमिलरली ऐसे ही HMI का भी सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ DOP सॉफ्ट. as you can see here, DOP soft, here it is. So this software is of HMI. This software is for HMI and this software is for PLC program. So हम जाएंगे इसके अंदर प्रॉपरली. मैं आपको समझाऊंगा कि हाउ इट प्रोग्राम वेरी बिगिनिंग. आई वुड लाइक टू टेल यू कहाँ से ये आप सॉफ्टवेयर एक्वायर कर सकते हो. लाइक यू हैव टू जस्ट एंटर ऑन सर्च engine support and service software for Delta, and if you enter on it, then sorry. So here you can see service and support, customer service. आपको इस पर क्लिक करना है इजीली. आप जैसे कि देख सकते हैं, as you can see easily,
हमारे पास डेल्टा की साइट ओपन हो चुकी है. वी हैव गॉट ओपन साइट ऑफ डेल्टा. नाउ एज यू कैन सी, आप इजीली यहाँ से देख सकते हैं कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए. इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए चाहिए. सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं कि आपको ड्राइव चाहिए, मोशन कंट्रोलर्स चाहिए, फील्ड डिवाइसेस चाहिए. ऑल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स डेल्टा कैन गिव यू. तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं. आपको पीएलसी का सॉफ्टवेयर चाहिए, देन नॉर्मली क्लिक ऑन पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर. देन आपको सेलेक्ट प्रोडक्ट सीरीज. देयर आर लॉट्स ऑफ सीरीज इन पीएलसी ऑफ डेल्टा. डेल्टा की पीएलसी के अंदर काफ़ी तरीके की सीरीज है. हर सीरीज डब्ल्यूपीएल सॉफ्ट पे काम कर जाती है. तो आप फॉर एग्जांपल बेसिक पीएलसी लेते हैं SS2. अब तो आप यहाँ से इसकी कैटलॉग वगैरह, एप्लीकेशन नोट, सॉफ्टवेयर, आप यू कैन गेट एवरीथिंग. तो आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे, देन सबमिट करेंगे. तो आप नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर देखेंगे रिलेटेड ऑफ दिस पीएलसी. एज यू कैन सी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि WPL सॉफ्ट है, अपडेटेड वर्जन. आप एनी ऑफ देम आप डाउनलोड कर सकते हैं. Here we have a zip folder. You just have to click on this zip folder and आप easily एक zip फाइल डाउनलोड कर पाएंगे अपने लैपटॉप में. देन यू कैन इजीली डाउनलोड द रिलेटेड सॉफ्टवेयर. तो सिमिलरली हम ऐसे ही HMI का सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं. जहाँ आपने PLC सिलेक्ट किया था वहाँ पर आप ह्यूमन मशीन इंटरफेस सेलेक्ट कर सकते हैं. Here you have ओके. मैं आपको बाद में बताऊंगा. आई विल टेल यू लेटर दैट इन HMI there are different types of human machine interface. Like human can interface to the machine by 2 or 3 means. I will tell you by 2 means. I will tell you later. And PLC also have 2 different types. So I will tell you later. First of all I want to show you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप कैसे HMI का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं. आप यहाँ टच पैनल HMI पे क्लिक करेंगे. तो सिमिलरली वही आपको सेम फंडा अपनाना पड़ेगा. सिमिलरली यू विल हैव टू पुट द सेम प्रोसीजर, फॉलो द सेम प्रोसीजर. लाइक सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे एंड यू कैन इजीली गेट द रिलेटेड सॉफ्टवेयर. लाइक आप वहाँ पर पीछे यहाँ पर आप सीरीज भी डिफाइन कर सकते हैं. बट मोस्ट ऑफ द सीरीज needs all the touch panel series needs DOP soft. तो टच पैनल अगर आप करेंगे तो DOP सॉफ्टवेयर वर्क करेगा वो. और अदरवाइज आप अगर कीपैड वाली पे करेंगे तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर होगा. आई विल टेल यू लेटर. तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं DOP सॉफ्ट आपको दिखाई दे रहा है. आप यहाँ इजीली जिप फोल्डर अपना डाउनलोड करिए और सेटअप को इंस्टॉल करके आप इजीली यूज कर सकते हैं. नाउ later now well I want to tell you कि आपको पता है कि PLC are of 2 type which we generally use, and HME are of also. HMI also have 3 types of HMI are also there. PLC जो है आपके पास पहली होती है आपकी रिले टाइप. लाइक अगर आप कोई भी इनपुट को देते हो PLC के अंदर एंड आउटपुट ऑन होता है तो वो रिले टाइप का होगा. रिले ऑन ऑफ होगी. मैकेनिकल प्रोसीजर है और मैकेनिकल प्रोसीजर थोड़ा स्लो होता है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसीजर होता है ट्रांजिस्टर टाइप PLC में. सो वी हैव रिले टाइप एंड ट्रांजिस्टर टाइप. तो ट्रांजिस्टर टाइप PLC में आपको रिस्पॉन्स बहुत फास्ट दिखाई देगा. दैट्स वाई हम इसको पल्सेस के लिए यूज करते हैं कि अगर हमें आउटपुट में पल्सेस, नंबर ऑफ पल्सेस चाहिए. लाइक सर्वो के अंदर हमें नंबर ऑफ पल्सेस चाहिए. पल्सेस के बेसिस पे हमारा एनकोडर की कैलकुलेशन होती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस
you will generally see the transistor type PLC needed, where the output you want in the form of pulses. And अगर आप relay type use कर रहे हैं, then for the normal applications where you want to give supply to any cylinder, or the normal applications, for the normal applications we generally use relay types of PLC. तो आपको पता लग गया है PLC दो टाइप की, NHMI भी हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक टच पैनल वाली होती है, एक कीपैड पैनल वाली होती है, और एक होती है कीपैड टच दोनों। तो कीपैड के लिए मैं आपको बताऊंगा, टच के लिए आपका DOP सॉफ्ट यूज होता है, एंड कीपैड टाइप ऑफ HMI के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। और इफ यू रियली वांट टू नो, अगर अब आप अभी जानना चाहते हो तो आप इजीली यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट पैनल वाली चीज सॉफ्टवेयर पर क्लिक किए, सबमिट कीजिए, आपको यहाँ मिल जाएगा। As you can see, TP editor. In TP editor is a software which we use for the upload and download, or for the designing procedure of text panel type, means keypad type. Okay. Now I want to tell you कि WPL सॉफ्ट PLC के लिए अगर आप WPL सॉफ्ट में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपको कौन सी केबल चाहिए होगी प्रोग्रामिंग के लिए, जिससे कि आप अपलोड और डाउनलोड कर सकें। तो आपका ये WPL सॉफ्ट है, दिस इज योर WPL software which we use for PLC programming. As you go to file, आप फाइल पे जाएंगे, न्यू प्रोग्राम करेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, as you can select model type is asking for PLC. You can select any type of PLC from here. Let's suppose I'm using this type. Go to settings. अगर आपने केबल कनेक्ट करा हुआ है अपनी लैपटॉप से, देन आपको यहाँ पर एक कॉम पोर्ट दिखाई देगा, लाइक नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉम पोर्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। और अगर आपका यहाँ कॉम पोर्ट नहीं आ रहा है, देन आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 डॉट, आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, देन रिलेटेड कॉम पोर्ट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। सिमिलरली जैसे कि यहाँ आ रहा है सिलिकॉन लैब CP2 देन USB to UART ब्रिज COM5, तो उस पर क्लिक करेंगे। अभी मेरे लैपटॉप में केबल कनेक्टेड नहीं है, बट कनेक्टेड होगी तो आपका इजीली यहाँ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर आपका स्काई मोड सेलेक्ट होगा, डेटा लेंथ आपकी 7 ही रहेगी, पहले से E1 रहेगा, टॉप बिट 1, बॉड रेट 9600 एंड स्टेशन एड्रेस 1। बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, आप ऑटो डिटेक्ट करेंगे, बट मैं करूँगा तो अभी होगा नहीं, कॉम पोर्ट मांगेगा, बिकॉज मैंने अभी कनेक्ट नहीं करी हुई केबल, बट आप जैसे ही ऑटो डिटेक्ट करेंगे आपका एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी आपको, जिसमें कम्युनिकेशन सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। इफ अगर स्टेशन एड्रेस 1 ही हुआ तो, इन केस you have different station address, then आपको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा to confirm your by default 1 तो हम 1 रखेंगे। हमारे पास यहाँ सिमुलेटर भी होता है, हम सिमुलेटर पे काम करेंगे। बट अगर आप
आप ऑनलाइन हैं और आप पीएलसी पे ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, केबल कनेक्टेड है, तो आप इस सिमुलेटर पे काम ना करें और आप डायरेक्ट ऑनलाइन डाउनलोड अपलोड कर सकते हैं प्रोग्राम को। फिर हम सिमुलेटर ऑन करेंगे। यहाँ पर आप इजीली कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, लाइक LDX0। ये आपका एक इनपुट हो गया। मैं एक आउटपुट होल्ड करा के दिखाता हूँ। आपका एक होल्ड हो गया और डिस्कनेक्ट करने के लिए X1 हो गया। अब मैं अगर डाउनलोड करता हूँ, और पर सपोर्ट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट टू पीएलसी हो गया, तो आप ऑनलाइन मिल सकते हैं। टाइम आउट शो कर रहा है, टाइम आउट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हम अभी राइट नाउ वी आर नॉट ऑनलाइन। तो सिमुलेटर पे जाते हैं, कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को ऑनलाइन मोड पे। ओके, बैकग्राउंड में एक और प्रोग्राम ओपन है, प्रॉब्लम आपको क्लोज करना पड़ेगा। नाउ अगर आप कर लीजिए राइट टू पीएलसी, तो इजी हो जाना चाहिए इसके अंदर अभी। ओके, सॉरी कंप्यूटर ऑन नहीं है। हाँ, आपको हो गया जैसे कि आपके डाउनलोड ऑनलाइन मोड है, ही ऑनलाइन मोड आ गया, डाउनलोड किया। आप देख सकते हैं कि ये मोड है, सिमुलेटर पे है। अगर सिमुलेटर आप ऑनलाइन होंगे तो यहाँ सिमुलेटर नहीं आएगा, पीएलसी टाइप एड्रेस 1 और आपका पीएलसी का नेम जैसे कि यहाँ आ रहा है और सिमुलेटर नहीं आएगा, ऑनलाइन मोड आएगा। तो अगर जैसे ही सेट ऑन क्या आउटपुट ऑन हो चुका है, ऑन करेंगे आउटपुट। अब ये तो हो गया है पीएलसी का पार्ट। अब नाउ आई विल टेल यू हाउ HMI डिजाइनिंग इज, कैसे होती है HMI डिजाइनिंग। जो भी टाइप की आपकी HMI है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, एंड इन काइंड ऑफ HMI you are using you can select from this given list। तो यहाँ पर बेसिकली हम नॉर्मली छोटी सी होती है 03S222 हम वो यूज़ करते हैं। यहाँ आपको कुछ चेंज नहीं करना है, यहाँ प्रोजेक्ट नेम है, अगर आप प्रोजेक्ट नेम चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। स्क्रीन नेम है, स्क्रीन नेम डाल सकते हैं। नंबर फर्स्ट नंबर स्क्रीन, उसका नेम चेंज कर देंगे, स्क्रीन नंबर है। तो मैसेज हो जाता है। यहाँ पर आपका है कम्युनिकेशन सेटिंग होती है, यहाँ आपको लिंक नेम लिंक 1 ही रहने दीजिए। मैन्युफैक्चर आप डेल्टा यूज़ करें, डेल्टा रहेगा। सीरीज आप डेल्टा डीवीसी पीएलसी यूज़ करें तो पीएलसी ये रखें। अब द थिंग इज, आप डेल्टा डीवीसी पीएलसी को कनेक्ट कैसे करना चाहेंगे HMI से। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं दो फोन पोर्ट दिखाई दे रहे हैं हमारी इस टाइप ऑफ HMI के लिए, विच इज BO3S211 के अंदर दो फोन पोर्ट आपको दिखाई देंगे। एक
आई थिंक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जो भी टाइप का आप कॉम पोर्ट यूज़ करेंगे तो आप उसी टाइप का कनेक्टर लगा के उसको पीएलसी के साथ यूज़ कर सकते हैं। इन पीएलसी वी हैव टू थ्रू पीएलसी टू एचएमआई आपके पास यू हैव टू two different type of ways to communicate. One is RS232 and another one is RS485 communication. So before that, I want to tell you some different things. जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा PLC है, हमने डाउनलोड तो कर दिया, बट मैं स्किप कर जाता हूँ कि कौन सा केबल आपको यूज़ करना पड़ेगा इसको डाउनलोड और अपलोड के वक्त। सो लेट मी टेल यू। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये आपकी डेल्टा की वो केबल है, प्रोग्रामिंग केबल हम इसे कहते हैं। ये केबल है आपके यहाँ 8 पिन कनेक्टर है या 9 पिन कनेक्टर है। एंड दिस एज यू कैन सी आपको दिख पा रहा होगा ये यूएसबी टाइप। तो ये यूएसबी टाइप कनेक्टर आपके पीसी में, लैपी में, जहाँ आप लगाना चाहें, जहाँ से आप प्रोग्रामिंग करना चाहेंगे वहाँ ये कनेक्ट हो जाएगा। ये RS232 8 पिन कनेक्टर है, ये RS232 9 पिन कनेक्टर है। तो पीएलसी में हमको बेसिकली दिया होता है 8 पिन कनेक्टर। तो ये आप सीधा अपने लैपटॉप में लगाइए, सॉरी ये यूएसबी टाइप ऑफ कनेक्टर आप अपने पीसी में लगाएं, लैपटॉप में लगाएं, और आप ये 8 पिन कनेक्टर आपसे डायरेक्टली यू कैन कनेक्ट थ्रू पीएलसी। सो बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा, आई वांट टू टेल यू कि इसके कनेक्शंस क्या हैं। अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप कैसे बनाएंगे इस केबल को, हम बना भी सकते हैं इस केबल को। वी कैन ऑल्सो मेक इट बाय ओन केबल। अगर बनाना चाहें, इफ समवन इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द केबल एंड हाउ विल इट विल बी मैन्युफैक्चर्ड। आप जैसे कि देख सकते हैं टी सब कनेक्टर, इसमें एक वन साइड आपको मिलेगा यूएसबी पोर्ट जिसमें D+, D-, +5 वोल्ट और ग्राउंड होता है। दूसरी तरफ ओके, skip this part. I will tell you later in the different videos where I will tell you all the cables type and their connections. So हम वापस आ जाते हैं, come back to our old position. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, I was telling you that we have two types of ways to communicate through PLC and HMI. एक है RS232, दूसरा 485। तो पहले हम RS232 से कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे हम RS232 पे हैं, हमने ये इजीली चूज़ किया RS232। HMI स्टेशन 0 है बाई डिफ़ॉल्ट, डेटा बिट 7, स्टॉप बिट 7, कोड रेट 7। हम यहाँ पर वही कम्युनिकेशन पैरामीटर्स रखेंगे जो कि हमारी PLC के अंदर से कम्युनिकेशन करते टाइम। डू यू गाइस रिमेंबर कैसे हमने किया था? एक बार और दिखा देता हूँ आपको। जब हम इसको कम्युनिकेट कर रहे थे कम्युनिकेशन टाइम पर, डेटा लेंथ 7, पैरिटी इवन,
ये सारे पैरामीटर्स, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स हमें डालने पड़ेंगे अपनी HMI में सिमिलर, तभी जाकर आपकी HMI उससे कनेक्ट होगी। PLC स्टेशन 1 है आपका। पासवर्ड अगर आप एनेबल करेंगे तो ये पासवर्ड रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7। स्टॉप बिट 1, डेटा बिट नॉल, पैराडे, ये सब आपको यही रखना पड़ेगा। देन आपको फिनिश करना पड़ेगा और आपकी एक विंडो खुल जाएगी जहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डिज़ाइनिंग पार्ट है। डिज़ाइनिंग पार्ट की भी मैं आपको एक अलग वीडियो दिखाऊंगा जहाँ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डिज़ाइनिंग करते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। तो मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ रिव्यू दे दूँ कि यहाँ पर आपके पास सारे व्हीकल्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक बटन, सारे बटन हैं, आप ऑल टाइप ऑफ बटन आए हैं, मीटर्स है, ये डिज़ाइनिंग प्रोसीजर्स हैं, मल्टी साइड इंडिकेटर्स हैं, ये न्यूमेरिक डिस्प्ले, कैरेक्टर डिस्प्ले, जो भी आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, टाइम डेट एंड सब कुछ है। डिस्प्ले भी है, डेटा एंट्री भी है, न्यूमेरिक एंट्री, कैरेक्टर एंट्री, ग्राफ्स वगैरह आप शो कराना चाहते हैं, हिस्ट्री डेटा, अलार्म हिस्ट्री, ये सब आपको मिल सकता है अगर आप डिज़ाइन करेंगे। जैसे जैसे आप डिज़ाइन करेंगे आप वैसे ही धीरे धीरे सीखेंगे। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ, एक नॉर्मल सा एक बटन दे देता हूँ, मोमेंटरी बटन बनाया हमने, बटन बनाया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं एड्रेस जो भी आप PLC में वर्क करा रहे हैं। तो आप यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पर आपको एड्रेस डाल सकते हैं। लिंक वही लिंक होना चाहिए जो आपने कम्युनिकेशन जब हम स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन में जाके आपको वहाँ लिंक और लिंक डालना पड़ा था। हमें डेल्टा टाइप PLC भी डाली थी हमने, और डेल्टा DVP PLC तो RS232 से कम्युनिकेशन करते थे। तो कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, आप 1 डाल दें, मेमोरी बिट हम यूज़ करते हैं, 1 डाल दिया, एंटर कर दिया, रीड एड्रेस ये आप सेम डालें, जो भी आप यहाँ से भी रीड करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ डालें, नॉर्मली एंटर करा दें। ध्यान रहे ये करते टाइम यहाँ पर जो स्टेशन एड्रेस है वही रहे जो PLC का है या PLC से कनेक्ट कराना है। फिर ये आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से फोरग्राउंड कलर देते हैं, तो आप बाकी आप इसके ऊपर अगर कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऑन लिखा आपने फोल्डर थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपके अंदर सब कुछ है डिज़ाइनिंग पार्ट में, जैसा आप करना चाहेंगे। ये आपका हो गया, तो कम्युनिकेट भी आपका इजीली हो जाएगा। अब बात रही कि हम कहाँ से अपलोड और डाउनलोड करेंगे। आपको अपलोड डाउनलोड करने की यहाँ आइकन भी बने हुए हैं, यहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अपलोड डाउनलोड अगर आपको यहाँ से भी आप अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ओल्ड डेटा, अपलोड ओल्ड डेटा। अपलोड मीन्स फ्रॉम HMI टू योर PC, डाउनलोड मीन्स फ्रॉम योर PC टू HMI। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ये रेसिपी वगैरह आप प्लीज़ देख कर लगाइए, इसके अंदर सब कुछ हम बाद में आपको अगली वीडियोस में जैसे जैसे हम बनाएंगे, जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम आपको बनाकर सब सारा टाइप का एप्लीकेशन हम आपको दिखाएंगे। तो बहुत बेसिक लेवल का मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया है। तो आपको मैं यहाँ केबल भी दिखा दूँ कि HMI PC HMI में PC से HMI में डालने के लिए, अपलोड डाउनलोड करने के लिए, अपलोड डाउनलोड करने के लिए कौन सा केबल चाहिए आपको। ये आपकी वो केबल है, डायरेक्ट डाउनलोड या USB पोर्ट। मैं आपको ओरिजिनल में दिखाता हूँ कैसी है।
केबल, इसको हम कहते हैं एक्चुअली प्रिंटर केबल। ये मिनी यूएसबी, यूएसबी टाइप, यूएसबी बी टाइप, ये होता है यूएसबी ए टाइप। तो आप ये प्रिंटर केबल है जिसके कनेक्शन मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके कनेक्शन है, अगर आप खुद बनाना चाहते हैं खुद ही बना सकते, सोल्डर वगैरह करके। ये 1 2 3 4 कनेक्शन है। ये 1 2 3 4 ये यूएसबी का कौन किससे कैसे कनेक्टेड होगा वो आपका ये लगा केवल लिखा हुआ, केबल कलर डिस्क्रिप्शन में वीसीसी पिन 1 2 3 4। सो ये था RS232 के थ्रू हम HMI को PLC से कैसे कम्युनिकेट करें। आपने ये सब तो कर लिया, बट हमारा हार्डवेयर कम्युनिकेशन तो अभी हुआ ही नहीं। सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन हमने बिट रेट वगैरह कम्युनिकेशन पैरामीटर्स डाल दिए हैं HMI PLC के अंदर। जो हम कम्युनिकेशन के टाइम पे यूज़ कर रहे थे वो हमने HMI के अंदर डाल दिए, बट हार्डवेयर कनेक्शन नहीं हुआ, एक वायर के थ्रू कनेक्शन नहीं हुआ है। वायर के थ्रू कनेक्शन करने के लिए हमारे पास एक अलग केबल होती है जो हम अपलोड डाउनलोड के लिए यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट HMI में लगाएंगे और PLC पे लगाएंगे और वही डायरेक्ट यूज। PLC की तरफ हमारा 8 पिन कनेक्टर होगा एंड HMI की तरफ हमारा 9 पिन कनेक्टर होगा। ये रहा आपका 8 पिन 9 पिन कनेक्टर। ये एक्चुअली एलन ब्रैडली, ये है डेल्टा का। ये डेल्टा, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये 9 पिन, ये 9 पिन कनेक्टर, 9 पिन डी सब मेल कनेक्टर होते हैं से। ये हो गया आपका 8 पिन मिनी DIN मेल। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये आपके कनेक्शन पैरामीटर कनेक्टिंग पिन है, जिसको जैसे कनेक्ट करना चाहे उसे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करके आप नॉर्मली एक केबल बना सकते हैं। तो आपको जो नॉर्मली इसमें लगाना पड़ेगी हार्डवेयर केबल। ये आप इजीली परचेज कर सकते हो और आप हमारे पास से SPM ऑटो सॉल्यूशन से भी परचेज कर सकते हैं। तो आपने ये परचेज किया और आपको आफ्टर पुटिंग द पैरामीटर्स ऑफ PLC इन HMI, कम्युनिकेशन पैरामीटर्स डालने के बाद आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट कीजिए। then you will get the connected communication of HMI and PLC. So thank you to all of you to listen me, and आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई। आप हमारी वीडियो जैसे ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, हमें और मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियोस बनाने का, सो दैट आई कैन हेल्प यू मूव बेटर। तो मैं अभी और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि आपको मैं मिनी प्रोजेक्ट्स बना के दिखाऊंगा कैसे हम बटन्स बनाकर एक नॉर्मल प्रोग्राम को कैसे रन कराते हैं PLC के अंदर थ्रू बाय यूजिंग HMI इंटरफेस, मशीन इंटरफेस हम कैसे यूज़ करेंगे, तो कैसे हम रन करेंगे। डिफरेंट वेज होते हैं, इसमें रेसिपी भी बनाई जाती है जो हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। वी विल शो यू later on videos where we will pick different applications where we will use the recipes. Thank you so much, and please subscribe our videos.